Welcome back everyone to the weekly webinar cum training session hosted by Rajlakshmi Solutions Private Limited. So on behalf of Rajlakshmi team, I Anaga welcome all of you in this session. So today we'll be exploring the tally feature, that is GSTR 2A and 2B reconciliation. So before moving ahead into our main topic, let's introduce Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the various prospects, that is software including sales, services, solutions, implementations and development. And our main primary focus area includes Tally Prime, SAP Business One, Bittrex 24 and Skill India. So as a company, we are dedicatedly providing the comprehensive software solutions across all these platforms. So now we will just welcome our speakers. The speakers are ready for the session. So Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Okay. And Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay. Bhagwati sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you. Okay. So Pinaj and Sonali, I request you to proceed with your presentations. Hello, good evening all. Myself Pinash Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, on behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions. So moving ahead to our R2A and R2B reconciliation in Tally Prime. It is so simple that by just uploading the GST R2B and 2A statement, the book's data will be automatically reconciled with the statement and will reduce a quick and comprehensive summary of the reconciled transaction and the mismatches. With a few clicks, you will be on reconciled invoices and also the ones that are not matching. जीएसटी रिकंसिलिएशन इतना इजी है कि जीएसटी R2B और 2A स्टेटमेंट अपलोड करने से बुक्स का डेटा ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगा और रिकंसाइल ट्रांजैक्शन और मिसमैचेस का एक स्टेटमेंट एक समरी तैयार करेगा. ट्रैक mismatches in the return period. Sometimes there might be a mismatch in the date that appear in different return periods for you and your party. For such a transaction, you can simply update the GST return effective date in your books so that it reflect in the respective return. कभी transaction डेट में मिसमैच हो जिससे यह आपके और आपकी पार्टियों के डिफरेंट रिटर्न पीरियड में दिखाई दे. ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए आप अपनी अपलोड कर सकते हैं ताकि यह रिटर्न पीरियड में रिफ्लेक्ट हो. Reconciliation status summary. The reconciliation statistics section gives you a bird eye view of the number of reconciled, unreconciled, and uncertain transactions. Can drill down from each of those subsections to take a closer look at the transaction details. Transaction statistic section में आपको reconcile किए गए, unreconciled और uncertain transactions शो होते हैं. ट्रांजैक्शन डिटेल को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए आप सब सेक्शन को ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. सो थैंक यू. थैंक यू पिनाज, इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन. सो आज हम देखेंगे कि जीएसटीआर 2A एंड 2B रिकंसिलिएशन हम टैली से कैसे कर सकते हैं. सो जस्ट 1 मिनट, माय स्क्रीन इज, मैम माय स्क्रीन इज विजिबल? Yeah, it's visible. या, थैंक यू. सो हम आज देखेंगे कि टैली से हम जीएसटीआर 2A एंड 2B रिकंसिलिएशन किस तरीके से कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ हमें यहाँ पे टैली की ये विंडो ओपन हो जाएंगी. तो यहाँ पे हमें जाना है अल्ट जी में जीएसटीआर 2A रिकंसिलिएशन करने के लिए. तो यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट समझाएंगे डिस्प्ले एंड डे बुक में. यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का. इसके अंदर है जीएसटी रिपोर्ट्स. यहाँ जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे एक जीएसटीआर 2A रिकंसिलिएशन का.
तो GSTR2A रिकंसिलिएशन को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे Alt F2 करके हम पीरियड चेंज करेंगे, कौन से पीरियड का हमें रिकंसिलिएशन करना है। तो यहाँ पे मैं मन का ही करूंगी, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये विंडो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हमें जो ट्रांजेक्शन है अनरिकंसाइल्स में पूरे शो हो रहे। अगर रिकंसाइल हुए रहते थे तो जो ट्रांजेक्शन रिकंसाइल हुए यहाँ पे हमें शो करता था। यहाँ पे अनरिकंसाइल वाले हमारे 112 ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे अवेलेबल ओनली इन बुक्स में हमें इतने ट्रांजेक्शन शो हो रहे। अगर कोई ट्रांजेक्शन मिसमैच में होते थे तो हमें यहाँ पे अनसर्टन ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्शन शो होते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे F12 में। जो भी हमारे वाउचर्स एक्शंस अगर पेंडिंग में है अदर पीरियड्स में, तो वो अगर हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स में चाहिए, तो ये F12 कॉन्फ़िगरेशन में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये ऑप्शंस को हम एनेबल करेंगे। यहाँ पे हमें जो भी है ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर शो रिकंसिलिएशन स्टेटस अगर देखना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे यस करना है। अगर कोई भी वाउचर्स है रिपोर्ट्स में, कोई वाउचर्स अगर काउंट करने हैं तो वो काउंटिंग के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन है शो रिपोर्ट एंड वाउचर काउंट एंड पेंडिंग एक्शंस में, ये दो ऑप्शंस को हमें यहाँ पे एनेबल करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट पीरियड अगर है तो वो पीरियड वाइज भी हम यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पीरियड दिया गया है, इसको मैं कंट्रोल ए कर देती हूँ। तो इस तरीके से वाउचर काउंट करेंगे हम, हमें ये जो वाउचर से पेंडिंग में कितने हमारे, ये ऑल यहाँ पे हमें शो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाना है अभी इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो होता है GST रिटर्न का। GST रिटर्न में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो पोर्टल से हमने GSN फाइल अपलोड करके ली है, तो वो फाइल हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे हम इंपोर्ट में GST में रिटर्न में जाते हैं, तो हमें GST रजिस्ट्रेशन जो भी हमारी कंपनी का है, अगर यहाँ पे आप एक ही टैली में अगर GST अलग अलग अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें GST रजिस्ट्रेशन में हम GST नंबर वाइज यहाँ पे शो करेंगे, उस तरीके से हम उसको वर्किंग कर सकते हैं। रिटर्न टाइप में हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें ये तीन ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे, GSTR1, GSTR2A, GSTR2B। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे यहाँ पे GSTR2A। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमें ये विंडो शो होंगी। हमारा जो GSN फाइल है तो कौन से फाइल में यहाँ पे रखा है, यहाँ पे हमें वो पाथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइल है मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। मैम स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो हेलो, Yes, Sonali. यहाँ पे देखिए, या मैम स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन Yes, शॉट, yes, yes. या थैंक यू। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो GSN फाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे आपको बता रही। जैसे हम यहाँ पे पाथ फाइल सिलेक्ट करेंगे तो हमें फाइल टू इंपोर्ट के लिए GSN फाइल हमारी जितने भी है यहाँ पे हमें लिस्ट में शो करेंगे, तो उसमें से हमारे कौन से मन का GSN फाइल है वो हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम इसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद हमारी यहाँ पे सेकेंड विंडो हमें यहाँ पे शो करेंगी। जितने हमारे ट्रांजेक्शन्स थे वो GSN फाइल में, तो उतने ट्रांजेक्शन्स जो है हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं वो समरी वाइज हमें यहाँ पे शो करेगा। तो हमारे टोटल 54 ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो ये स्क्रीन हमें वहां पे आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड है हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है, अगर वो ट्रांजेक्शन हमारे इंपोर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको शो करता है ये रिपोर्ट्स इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे रिकंसाइल कितने ट्रांजेक्शन है, अनरिकंसाइल्स में कितने ट्रांजेक्शन है, 5 ट्रांजेक्शन बता रहे, उसमें से 5 ट्रांजेक्शन अनरिकंसाइल में क्यों है, तो यहाँ पे हमें दिए गए मिसमैच में, तो मिसमैच में हमारे 2 ट्रांजेक्शन है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स में 1 ट्रांजेक्शन है, पोर्टल पे 1 ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से हमारा जो है रिपोर्ट्स रिकंसाइल इंपोर्ट करने के बाद हमारा ये रिपोर्ट्स इस तरीके से हमें शो होता है। B2B ट्रांजेक्शन्स में हमें 43 ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, तो उसमें से जो है ऑन पोर्टल पे हमारे 44 ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसमैच है। B2B इनवाइस वाइज हम चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे B2B इनवाइसेस में कौन सा ट्रांजेक्शन है जो हमें मिसमैच में बता रहा है। ठीक है, B2B ट्रांजेक्शन में जैसे हम जाएंगे तो हमारी जो जो पार्टी के यहाँ पे ट्रांजेक्शन है वो पार्टी हमें यहाँ पे शो करेंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको पार्टी वाइज शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा एक कंपनी है वो हम
कंपनी वाइज देखेंगे, सूरज एंटरप्राइजेस। सूरज एंटरप्राइजेस को जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सूरज एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट जितने भी ट्रांजेक्शन है तो वो पूरे ट्रांजेक्शन हमें ये रिपोर्ट्स में शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 22 की जो एंट्रीज थी, तो वो जो एंट्रीज है यहाँ पे हमें ब्लू कलर्स में शो हो रही 1 अप्रैल की। वहां पे अमाउंट का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो वो अमाउंट में हमारा मिसमैच है। तो ये मिसमैच है हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप पूरा देखेंगे तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पे मिसमैच में हमारे 2 ट्रांजेक्शन से वो शो हो रहे हैं अवेलेबल इन बुक्स एंड ऑन पोर्टल पे, जो हमारे डिफरेंट पीरियड में है, तो वो भी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा मिसमैच वाला अनरिकंसाइल्ड वाली जो भी ट्रांजेक्शन है हमें इस तरीके से रिपोर्ट में शो करेंगे। जैसे हम एरर निकाल देंगे ट्रांजेक्शन में से, तो हमें यहाँ पे एक विंडो आएंगी टैली में। हम जैसे एरर अगर रिसॉल्व करेंगे तो रिसॉल्व करने के बाद जीएसटी के रिपोर्ट्स में हमें अल्ट एस बोल के एक ऑप्शन दिया गया है। वो ऑप्शन यूज करके हमारी जो भी मिसमैच में ट्रांजेक्शन है वो हमारे अगर रिसॉल्व हो गए तो हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। तो रिकंसाइल जैसे हम करेंगे तो हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है पोर्टल पे हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम GSTR 2A एंड 2B का जो है रिकंसिलेशन डायरेक्टली टैली प्राइम के रिलीज के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी जो है बच जाता है और अपना जो है रिपोर्ट्स प्रॉपरली हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टैली प्राइम में हमें ऑप्शन दिया गया है GSTR 2A एंड 2B रिकंसिलेशन। So thank you so much. End of my side. Thank you. Thank you, Pinaj and Sonali, for your presentation. So now I request Bhagwati sir to take the overview of the today's session. It's over to you, sir. Sure, Ganga, thank you. So, overall idea is कि myself is Bhagwati Jandaria, and this is today's session idea is कि how to reconcile the transaction of the 2A and 2B in the direct GST portal to Tally Prime. So, in terms of the GST, there is a lot of features Tally is enhanced day-to-day basis. So, अभी जो आप manually transactions कर रहे हैं, manually जो reconciliation कर रहे हैं, you have no need to do the manual reconciliations. और वो reconciliation में ऐसे कुछ transactions होते हैं, जैसा कि आपको सोनाली ने लाइव दिखाया, फिर दो तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आपके बुक्स में है, GSTN पोर्टल पर नहीं है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आपके बुक्स में GSTN के पोर्टल पे है, आपके बुक्स में नहीं है। दिस टाइप ऑफ द सिनेरियोस। एंड कुछ एडिशनल ट्रांजेक्शन है जो आपको रिकॉन्साइल करने हैं और उसको कन्फिगर करना है और रिजेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है और अप्रूव करना है। मे भी आपने कुछ बिल्स परचेज बिल आपने इनपुट नहीं किए होंगे, मे भी कुछ किए हैं, सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा होगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप जिसके कारण आपका रिटर्न फाइल करने में आपके इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल लॉसेस भी हैं और यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वेदर दे आर डूइंग द रिटर्न ऑन द टाइम और नॉट। सो इससे आपका कल की डेट में GSTN का भी नुकसान, GST का जो रेवेन्यू है जो उनको आपको इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए था, उसका भी आपको लॉस हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आसान करने के लिए टैली ने डायरेक्टली इंटीग्रेट किया है। GSTN से आप फाइल डाउनलोड कीजिए और इंपोर्ट कीजिए और रिकंसिलेशन कीजिए, जिससे आप डे टू डे बेसिस पे आपका काम आसान हो जाता है। इफ यू वांट टू डू इन अ वन टाइम इन अ मंथ, इफ यू वांट टू डू इन द डे टू डे बेसिस आफ्टर द 11th ऑफ द मंथ, इट्स अप टू यू, आप जैसे करना चाहें। आप रिकंसिलेशन GSTN पोर्टल से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। सो ओवरऑल आइडिया इज कि आपका बिजनेस सिंप्लीफाई कैसे हो। टैली आपके बिजनेस में एक कंप्लाइंस को लेकर के जो आपका एक पीयर है, उस पीयर को खत्म कर देना चाह रहा है, जहां पर आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर पाए। बाकी जो अकाउंटिंग एंड पार्ट एंड अदर ऑपरेशन पार्ट जो भी बिजनेसेस के हैं रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, सो दैट टैली विल हैंडल वेरी स्मूथली। और इन सभी चीज़ों को आपको कहीं भी कोई सपोर्ट लगता है, फॉर एग्जांपल यू नीड एनी टाइप ऑफ द सपोर्ट, एनी ऑफ द सर्विसेज, एनी ऑफ द ट्रेनिंग्स, इन सभी चीज़ों के लिए राजलक्ष्मी एज योर पार्टनर्स, सो आप हमारी कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जूम के चैटबॉट में अभी आपके सामने हमारे सपोर्ट के नंबर से यू कैन कम्युनिकेट विद आवर अकाउंट मैनेजर, दे विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू डू दिस एंड इम्प्लीमेंटिंग द योर इन द सिस्टम। In the second scenario,
every time we are doing all the recording of these sessions and we upload in our YouTube channel, जहाँ पर हमारा YouTube channel अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट नए आ रहे हैं, जो भी नए ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो भी सेशंस हो रहे हैं, वो सभी के अपलोड आपको मिलते रहते हैं। तो बाय द वे अगर आपने सेशन देखा है और आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, दैट टाइम वी वांट टू सी अगेन एंड अगेन, सो दैट सेशन यू कैन आल्सो चेक दैट। सो इससे आपका काम आसान हो जाता है और आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है किसी भी एक वेंडर एंड सप्लायर्स और पार्टनर्स के ऊपर। So this is your whole idea, and that's it from my side today. It's up to you, Anupam. Thank you. Thank you so much, sir. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to this social media. So we are also eager to receive your valuable suggestions for the upcoming webinar topics so that we can conduct for you specially. And now looking forward to reconnecting for the next webinar. Thank you, everyone.